کھجور جتنا لذیذ ہے یہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی عزیز ہے۔ یہ جہاں اپنی اہمیت و حکمت اور برکت و رحمت سے مالا مال ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہیں یہ سنت رسول بھی ہے۔ عام انسان سے لے کر ماہ رمضان کے روزہ داروں کی یہ بھرپور غذا بھی ہے۔ بے شمار خوبیوں اور اقسام کے حوالے سے یہ شفا بھی ہے اور جادو سے نجات کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ کھجور حضرت بلال کے روزگار کا نگینہ اجوا بھی ہے اور روزہ دار کا پہلا لقمہ بھی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ کھجور کی افادیت کے ساتھ ساتھ اس کی گٹلی کی بھی بڑی اہمیت واضح ہے۔ یہ دعاؤں میں شامل ہے، دواؤں میں محلول ہے اور بہترین صحت کا معمول ہے۔ عزیز ناظرین، آئیے جانتے ہیں کھجور ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور کھجور سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو پیش ہے اس سلسلے میں آپ تمام کے لیے کھجور بے شمار نعمتوں سے بھرپور سیاست ٹی وی کی اسپیشل اسٹوری، جس میں آپ جانیں گے شہر کے تاجرین اور ماہرین کے کھجور کے حوالے سے ڈھیر ساری معلومات فراہم کریں۔ تو دیکھیے اور دوسروں کو بھی دکھائیے، ایک کھجور ہے تو مختصر مگر یہ ہے پر اثر۔ یہ کہانی ہے دنیا کے نایاب اور بے شمار افادیت سے بھرپور کھجور کی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو غذا جیسی نعمت سے نوازا ہے، ان میں کھجور بھی شامل ہے۔ یہ خشک و ترکے نام کا بے مثال پھل ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے ان گنت نعمتوں سے معمور کیا۔ اس میں حکمت بھی ہے اور صحت بھی ہے، اور سب سے افضل یہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ میں کھجور کا پودا لگایا تھا، اور وہ اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ اجوا کھجور کو کھجوروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کے کئی اقسام ہیں۔ سیاست ٹی وی کے ناظرین کے لیے پیش ہے اسپیشل سٹوری، کھجور بے پناہ نعمتوں سے بھرپور۔ تحقیق و تحریر ہے محمد منیر کی، اور آواز ہے ڈاکٹر حمیدہ خان کی، اور اس کی منظر کشی کی ہے فہیم انصاری نے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصیت اور افضلیت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس سے افضل یہ ہے کہ کھجوروں میں اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے، اس میں شفا بھی ہے اور اس کی بے پناہ فضلیت بھی ہے، اور اجوا کھجور کو کھجوروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ میں اس کا پودا لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ کھجور کے متعلق قرآن کریم کی کئی آیتیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھجور کے لیے کئی ارشادات موجود ہیں، جن میں سے 2-3 ارشادات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں موجود تھے، تو ہمارے سامنے جو ہے تر کھجوریں یعنی کچی کھجوریں، تازہ کھجوریں جو ہے پیش کی گئی، اور جو ہے اس کے استعمال کے بعد میں نے یہ منظر میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ تو صحابی رسول نقل فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے جو ہے خواب کی تعبیر کو جب تلاش کیا تو تر کھجوریں کھانا اور اس کا استعمال کرنا گویا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سربلندی اور پھر دین کا تر و تازہ اور باقی رہنا، بقا رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں تقسیم کرتے ہوئے میں نے جو ہے دیکھا ہے، اور پھر مجھے بھی جو ہے اس میں سے چند کھجوریں یعنی تقریباً 7 کھجوریں میرے بھی حصے میں آئی، اور اس میں سے کھجور جو ہے چھوارا تھا یعنی سخت کھجور تھا۔ یعنی حدیث میں تر کھجوریں، تازہ کھجوریں اور پھر سوکھا کھجور دونوں کے استعمال کی جو ہے افادیت اور اس کی جو ہے فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اپنے گھر میں جو ہے کھجوریں رکھا کرو، کیونکہ کھجور جو ہے رزق ہے،
जिस घर में खजूर न हो वो घर भूखा है, यानी रिस्क की तरफ इशारा फरमाते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की तरफ इशारा फरमाया। तो इससे हम एक मुसलमान होने के नाते कुरान और हदीस की रोशनी के ज़रिए से हम जो है खजूर को रमज़ान में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो है हम गैर रमज़ान के अंदर भी खजूर को अपने इस्तेमाल के अंदर रखें, क्योंकि ये मुक़व्वी बदन है और मुक़व्वी मैदा भी है और तमाम चीज़ों को जो है बदनी तौर पर ये फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा भी सदक़ा और खैरात के मौके पर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े में जो है खजूर के देने के भी अहकामात मौजूद हैं। फिर इसके साथ में इफ्तारी के मौके पर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अशिया के इस्तेमाल के जो है बजाय खजूर को इफ्तार के अंदर इस्तेमाल फरमाने को जो है ज़्यादा जो है तरजीह फरमाई, और फिर उसके इस्तेमाल के लिए भी 3 खजूरों का जो है अहादीस के अंदर जिक्र है, बाज़ औक़ात में 5 खजूरें और बाज़ को जो है 7, यानी इससे पता चला कि ताख़ अदद के अंदर खजूर का इस्तेमाल करना जो है बदन के लिए बेहतर और मुफीद है। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खजूर को रोज़ेदारों के लिए पेश फरमाने का भी हुक्म फरमाया कि बड़ी फजीलत है रोज़ेदारों के लिए जो है खजूर पेश करना। एक सहाबी रसूल फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत की वजह से अगर हमारे पास खजूर मैसर ना हो तो जो है हम क्या करें? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है पानी के चंद घूंट ही रोज़ेदार की इफ्तारी के लिए पेश की जा सकती हैं, और फिर यह लस्सी का एक घूंट भी जो है रोज़ेदार को इफ्तारी के लिए जो है पेश किया जा सकता है। कई अहादीस में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन खजूर के बागात में जो है काम किए। खुद जो है मस्जिद नबवी के सामने भी खजूर का एक बड़ा बाग हुआ करता था, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर जो है तशरीफ ले जाया करते थे और उस बाग के अंदर रखा करते थे, जो कि खजूरों का बाग था। और फिर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद कराने के लिए भी खजूरों के बाग की जो है वहाँ पर यहूदी ने जो है उनको आज़ादी के लिए खजूर के ही जो है दरख्तों का और खजूर के ही बाग का जो है वो जो है डिमांड किया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने दस्ते मुबारक से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ादी के लिए खजूर के तनों को खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जो है लगाया। वो रमज़ान में मरकज़ी हैसियत रखता है। मुसलमानों में इसकी अहमियत की इंतहा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में इस दरख्त को मुसलमान कहा है, क्योंकि ये साबिर, शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। कुरान हकीम में खजूर का 22 बार जिक्र आया है। खजूर को अरबी में तम्र कहा जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी यहाँ काबिल ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने उसके बंदों के लिए ज़मीन पर कई मेवेजात उगाए हैं और इसके फ़ायदे भी बयान कर दिए। अल्लाह ताला ने खासकर खजूर का जिक्र कुरान में कई मर्तबा कई सूरतों में लाया है। सूरह मरियम में खजूर का जिक्र उस वक्त आया है जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को हुक्म दिया कि आप खजूर के तने के नीचे चले जाएं। जब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए कोई हुक्म जारी किया है तो इससे साफ साबित ये होता है कि इसमें जरूर अहम फायदे मख्फी हैं। और मैं एक खातून होने के नाते बयान कर सकती हूँ कि ख़वातीन के लिए खजूर के क्या फ़ायदे हैं और हमल के दौरान और फिर तवल्लुद के अमल के बाद कैसे कैसे ख़वातीन के लिए खजूर में फ़ायदे रखे गए हैं। खजूर की अफादियत पर अगर हम लिखना चाहे, बोलना चाहे, तो फिर कई तहरीरें, कई अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। खजूर को एक ऐसा मेवा अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है जिसमें अनगिनत ग़िज़ाई फ़ायदे शामिल हैं। खजूर में दूध, शक्कर और दीगर मुतवाज़िन अशिया का मजमुआ अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। वैसे तो रमज़ान की आमद है, तमाम घरों में खजूर की बहुतायत पाई जाती है। नाज़रीन, मैं आपको यह बताती चलूँ कि ना सिर्फ अब हम मुसलमान खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क की दीगर कौमें भी अब खजूर के फ़ायदे जान चुकी हैं, और फिर वो लोग भी अब खजूर की अफादियत को जानकर उनके जो मजहबी त्यौहार आते हैं उसमें खजूर का बेहद इस्तेमाल करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि शादियों के जब वो फंक्शंस उनके शुरू हो रहे हैं तो लोग जो अपनी इब्तिदाई जो लोगों को वेलकम डिशेस में खजूर का जूस, खजूर का हलवा
खाने के लिए पेश कर रहे हैं, ये बड़ी अहमियत की बात है। तो फिर हमको भी खजूर की अफादियत को समझना होगा और अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, सबको खजूर की अफादियत के जानते हुए उन्हें खजूर के इस्तेमाल करने के लिए अगर जोर दिया जाए तो फिर हमारे बीमारियों के मसाइल, ग़िज़ाई मसाइल में भी कमी वाक़ई हो सकती है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जा बजा खजूर का जिक्र मिलता है। खजूर का इस्तेमाल मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया में हज़ारों बरस से होता आ रहा है। अरब व खलीज ममालिक में इसका ताल्लुक़ तहज़ीब से जुड़ा है। आज भी वहाँ के लोग हज़्म मामूल, ईद व तक़ारीब में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं सऊदी अरब में 30 साल रहा हूँ और वहाँ की तहज़ीब से बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं, और रोज़ मैं खजूर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये एक सुन्नत नबवी भी है। और इसी तरह जब मैं हैदराबाद में मेरे दोस्त अहबाब मुझसे मिलने आते हैं तो उनको मैं खजूर और कहवा पेश करता हूँ, क्योंकि खजूर ये दस्तरख़्वान की जीनत है और मेहमान की ज़ियाफ़त है और सेहत की ज़ामिन होती है। और भी बहुत कुछ है खजूर के बारे में जो हम अगले हिस्से में पेश करेंगे। इस स्टोरी के हवाले से आप अपने तजुर्बात और तजावीज़ हमें दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी मज़ीद स्टोरीज़ पेश कर सकें। तो दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहें सियासी टीवी। अल्लाह हाफिज़।